Now it's time to begin with our today's studies. Yes, and you all said maths class. So now you have started catching my dialogues also, isn't it? Great. So class, as I told you yesterday that in tomorrow, that means for today I told you, we are going to do something really very interesting in mathematics, isn't it? मैम ने आपको बोला था कि मैथ्स में हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं. So here I am with that. Now we all know how to write numbers. We all know how to write counting, isn't it? आप सबको आती है counting लिखनी. You know a proper correct order of writing the counting. ऐसे ही है ना? You all know. Now if I ask you कि okay fine, all of you start saying the counting orally. So how you are going to begin? You will begin from 1. But 1 से पहले क्या आता है? When we are writing the backward counting, जब हम backward या reverse counting लिखते हैं, so what we write? 1 के नीचे हम क्या लिखते हैं? 0. 0 means nothing, isn't it? 0 means nothing. कोई नंबर नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं है. That means it's a 0. तो अब क्या है? When we are writing normal counting, or you can say forward counting or the sequence counting, we always begin it from 0. Though we don't write it, जब हम लिखते हैं अपनी counting, we begin it from 1, 2, 3, 4 and go on like that. But if we are talking orally, we begin it from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and the counting goes on. You have done it till 200. आपने 200 तक counting लिख ली है. So today, what are we going to understand? Can you tell me? See here, I have written some numbers. What I have written here? Some numbers I have written, isn't it? अगर आप ये सबसे ऊपर वाली लाइन देखें, if you see this one, the topmost line of numbers, I have written 5, 4, 8, 7, 0, 9, isn't it? Okay, moving to the next, we have written 2, 6, 8, 4, 1, 3, 0. Then if I come down here, I have written 7, 5, 9, 3, 2, 8, 1. Then again, the last one is 9, 8, 4, 2, 5, 1, 7. Now, just have a look at them all once again for a minute and tell me, if I ask you, can you tell me something? क्या ये numbers correct order में लिखे हैं? मैम ने क्या इनको सही लिखा है? Are they in a sequence? Missing numbers तो ये है नहीं, क्योंकि मैम ने तो dash डाला ही नहीं है कहीं पर. I have written all the numbers, isn't it? Now, या तो backward counting होती है, जिसमें हम reverse लिखते हैं. सबसे big number होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. या फिर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होता है. अब ये ना तो मैम ने रिवर्स काउंटिंग में लिखा है, ना मैम ने इसको फॉरवर्ड काउंटिंग में लिखा है. तो जस्ट टेल मी व्हाट इज रॉन्ग हियर. सो टुडे यू विल टेल मी व्हाट इज रॉन्ग हियर. मैम ने क्या किया हुआ है? क्या मैम ने यहाँ पे नंबर्स लिखते टाइम कोई भी सीक्वेंस, ऑर्डर या कुछ फॉलो किया? What is the mistake here? Can you tell me that? Yes, the mistake is the numbers which I have written, they are not in proper order. You are correct. They are not in proper order. मैम ने कोई भी नंबर कैसे भी लिख दिया, isn't it? जब मन किया जो नंबर लिखना है वो लिख दिया. आप लोग करते हो ना ऐसे समटाइम्स. जब मन किया जूस पीना है, जब मन किया चॉकलेट खाना है, मन किया तो पढ़ाई करनी है, नहीं करा तो नहीं करनी है. Similarly today मैम did. मैम का जब मन किया जो नंबर मन लिखा मैम ने लिख दिया इधर. जिस नंबर को लिखने का
लिया, मन किया, आई हैव रिटन, दैट मीन्स इट्स अ रॉन्ग थिंग, है ना, क्योंकि ये तो सीक्वेंस में है ही नहीं, गलत बात हो गई ना ये। नाउ वी हैव टू डू द करेक्शन। अब हमें क्या करना है, हमें इसको करेक्शन करनी है। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू राइट ऑल दीज नंबर्स इन अ करेक्ट ऑर्डर। अरे बाप रे, इतने सारे नंबर्स कैसे लिखेंगे हम, आई विल टेल यू। अब देखो मैम ने क्या किया, मैम ने इन नंबर्स को एक एक रो में डिवाइड किया। What we are going to do, we have to write these numbers, one in the first row in a proper sequence. जो first row में given numbers हैं, उनको हमें sequence में लिखना है। Understood? कैसे लिखेंगे? See, now we have to start our counting. Here comes the oral counting practice of yours. आप सबको oral counting अच्छे से आती है। मैम ने आज आपने देखा सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर्स लिए, दैट मीन्स फ्रॉम 0 to 9। नेक्स्ट क्लास में आई इंक्रीज, आई गो फॉर 2 डिजिट, बट आज व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग इट विल गो विद ओनली 1 डिजिट। ओके, सो 0 से 9 तक यू ऑल नो योर काउंटिंग प्रॉपर्ली, इजंट इट? अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है विच इज द स्मॉलेस्ट, काउंटिंग में जो सबसे पहला नंबर आता है वो कौन सा है। कैन यू टेल मी? 5 4 8 7 0 9। अब इसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, स्मॉल जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, 0, बिकॉज दैट मीन्स नथिंग, इजंट इट? तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 0 हियर। हमारी काउंटिंग यहीं से शुरू होती है ना, तो वी हैव रिटन 0 हियर। नाउ आपको क्या करना है, क्योंकि वी हैव रिटन 0, यू विल क्रॉस इट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि विच नंबर यू हैव ऑलरेडी कॉपी डाउन। जो नंबर हम नीचे कॉपी डाउन करते जाएंगे ऊपर वाले रो से, यू हैव टू कट दैट नंबर। क्लियर? 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, हमें सबसे स्मॉल नंबर से बिगिन करना है, और जो नंबर हमें कॉपी करा है नीचे, you have to cut that number, otherwise you will confuse. आप confuse हो जाओगे and then you will make mistakes. Okay, done. Now after 0 हम अपनी काउंटिंग को आगे बोलते हैं 1 है इसमें, no we don't have, तो हमें नहीं लिखना है। Then 2, we don't have 2 also, 2 भी नहीं है। 2 के बाद what comes next, 3। See, क्या 3 है हमारे पास? No, we are not having 3, so we will not write. Then 3 के बाद क्या आता है, 4 है, yes we have 4। तो अब हमें क्या करना है, we will copy down 4 here like this and again cut it like this. Understood? 4 को कॉपी करा और उसको कट कर दिया। Now after 4 we have 5, तो क्या हमारे पास 5 है, yes we have 5। Now what we will do, we will copy down 5 here and we will cut 5। See, जो भी नंबर आप नीचे कॉपी करते जाएंगे, you have to cut that number। और कॉपी कैसे करेंगे, always begin your counting from 0 से स्टार्ट करिए, keep on saying your numbers, और जो जो नंबर्स आपको यहाँ मिलते हैं उन्हें कॉपी करिए और ऊपर से कट करिए। अब देखिए 0 के बाद 4 लिखा है मैम ने, दैट मीन्स 1 2 और 3 हमें यहाँ नहीं दिए हुए थे, तो हमें नहीं लिखना है, यू विल नॉट राइट दैट। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, जो जो नंबर्स यहाँ लिखे हैं उन्हीं को ऑर्डर में लिखना है। बट व्हाई आई एम टेलिंग यू टू से योर काउंटिंग, सो दैट यू बिगिन विद अ प्रैक्टिस, आपको याद आ जाएगी किस ऑर्डर में नंबर लिखना है। वंस यू लर्न दिस मेथड, आपको फिर काउंटिंग बोलने की नीड नहीं पड़ेगी। अंडरस्टूड? टू लर्न द मेथड यू हैव टू से योर काउंटिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते जाएंगे, और जो भी नंबर यहाँ है यू हैव टू कॉपी डाउन एंड कट फ्रॉम हियर। अंडरस्टूड? चलिए 5 तक हम आ गए। नाउ व्हाट कम्स आफ्टर 5, 6। तो क्या
ठीक है, जैसे ही यू विल कॉपी डाउन यू विल कट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अंडरस्टूड? नाउ आफ्टर 7 comes 8, तो 8 है, yes we have 8, you will write down 8 and then you will cut it like this. Clear? 8 के बाद क्या आता है? 9, so we have 9 here, हमने 9 लिखा और 9 को कट कर दिया। अब देखो इसका मतलब अगर हमारे सारे नंबर कट हो गए हैं, that means we have written all the numbers here. And अब देखो 0, 4, 5, 7, 8, 9, अब ये करेक्ट ऑर्डर में आ गए ना सारे डिजिट्स। ऊपर ना हमने सब गलत ऑर्डर में लिखे थे, there was no order in it, कोई कहीं पे भी लिख दिया था, बट अब हमने क्या किया यहाँ पे, we have written all the numbers in a correct order and we call this order ascending order. So today's topic is ascending order. Say with me, ascending order. Ascending order क्या होता है? Now I'll tell you a little bit in Hindi to make you understand. Ascending order होता है कि जो भी आपको numbers दिए हुए हैं, चाहे वो किसी भी order में दिए हुए हैं, जब उन नंबर्स को हम उनके प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं फ्रॉम 0 टू द नंबर गिवन, यानी कि छोटे से बड़ा, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर, यानी कि सबसे छोटे से शुरू करना है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ही हुआ है ना, सबसे स्मॉल नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एक दूसरे से बड़े बड़े करते चले गए, यानी कि स्मॉलेस्ट से लेके और दिए हुए नंबर में जो बिगेस्ट है, जब हम अपनी ऑर्डर को, जब हम अपने नंबर्स को इस ऑर्डर में लिखते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, वी कॉल इट असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको? असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। जैसे हम अपना, हमारी हाइट या हमारी एज बड़ी होती है ना, हम छोटे से बेबी होते हैं, फिर हम बड़े 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 होते हैं ना, तो ऐसे ही छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, बड़ा 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 और सबसे बड़ा नंबर लास्ट में लिखना है। सो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको हम? असेंडिंग ऑर्डर। नाउ सी हियर अगेन वी हैव समथिंग अगेन, अब ये सारे नंबर्स गड़बड़ दिए हुए, इजंट इट? अब हमें इनको भी ऑर्डर में लिखना है। चलिए अब बताइए कैसे करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है आपको, तो बताइए विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 2, 6, 8, 4, 1, 3, 0, ये नंबर्स हैं। अब बताइए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 0, यस, सो वी विल राइट 0 हियर, और फिर क्या करना है हमें? 0 को कट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कट करना जरूरी क्यों है। देखो जब हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, अब आपने क्या करा, आपने वापस से ये नंबर्स देखने शुरू करे। अगर आपने 0 कट नहीं करा तो आपको लगेगा कि आपने 0 लिखा ही नहीं है, वो स्मॉलेस्ट है, तो आप उसको फिर लिख दोगे। तो उस मिस्टेक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हम कॉपी करते जाते हैं, वी हैव टू कट दैट नंबर, हम उस नंबर को कट करते जाएंगे। तो कट करने से क्या होगा, हमें ये याद रहेगा, वी कैन मेमोराइज इट, हमें ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। जैसे हमने कट देखा, व्हाट विल दैट मीन कि यस वी हैव ऑलरेडी कॉपीड दैट नंबर, हमने उसको कॉपी कर दिया तो हमें इसको देखना ही नहीं है। क्लियर ऑल? ओके, अब हमने 0 लिखा, व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 0 जब हम काउंटिंग बोलते हैं? 1, तो अब हमें देखना है क्या यहाँ पे 1 है? यस, वी हैव 1 हियर, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और फिर यहाँ से 1 को कट कर देंगे। कर दिया कट? ओके, नेक्स्ट 1 के बाद क्या आता है? 2, तो ओके, अब हमें देखना है, यस वी हैव 2 हियर, तो हमने क्या करा, 2 कॉपी कर दिया और फिर 2 को यहाँ पे कट किया। क्लियर? 2 के बाद क्या आता है? 3, सो लेट्स सी, 6, 8, 4, 3, हमारे पास 3 है, सो व्हाट वी विल डू, विल राइट 3, हम वही नंबर लिखेंगे जो हमारे पास है। क्लियर? ओके, 3 के बाद क्या आता है? 4, देन 6, अब ये 2 को हमने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कट हो गया है। 6,
कर दिया। ठीक है, 4 के बाद क्या आता है 5, तो देखें 6 8, बाकी नंबर तो कट हो चुके हैं, इसका मतलब 5 नहीं है। व्हाट विल कम आफ्टर दैट 6, वी हैव 6 हियर, तो हम 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं है वो, हमें 6 दिया है तो हमने 6 लिखा और 6 को कट कर दिया। क्लियर? आफ्टर 6 क्या आता है 7, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब तो सिर्फ 8 ही बचा है क्योंकि बाकी नंबर्स तो कट हो गए ना, इसका मतलब हमने कॉपी कर लिया। अब 7 तो है ही नहीं, 7 के बाद 8 आता है, 8 है तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट 8 हियर एंड देन वी विल कट दिस डाउन। अब देखो 2 कट हो गया, 6 8 4 1 3 0 सब कट हो गए। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक क्या हमने ये सही ऑर्डर में लिखे हैं, 0 1 2 3 4, 4 के बाद 6 और 8 बिल्कुल सही ऑर्डर है। अब तो ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। यस, कौन सा ऑर्डर है बेटा ये, इट इज योर असेंडिंग ऑर्डर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, व्हेन वी राइट नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, छोटे नंबर से बिगिन करेंगे और फिर बड़े नंबर पे खत्म करेंगे तो उसको हम कौन सा ऑर्डर कहते हैं, वी कॉल इट असेंडिंग ऑर्डर। रीड दिस वर्ड अगेन, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट नाउ रीड दीज नंबर्स, 7 5, दिस इज योर 9, सॉरी 3 2 8 1। अब बताइए इसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 0 तो दिया हुआ नहीं है तो वी विल नॉट राइट 0, व्हाट विल बी राइट, व्हाट विल राइट 1, क्योंकि 1 हमें दिया हुआ है, so what we will do, we'll write 1 and we'll put a cross here. After 1 7 5 9 3 2, 2 आता है, we'll write 2 here and we'll cross it. Clear? 2 के बाद क्या आता है 3, 7 5 9 3, हमारे पास 3 भी है, we'll write 3 and we'll cross. 3 के बाद 4 आता है, 7 5 9 8, यानी कि 4 नहीं है, 4 के बाद 5 7 5, यस वी हैव 5 लिखा और इसको कट कर दिया। नेक्स्ट वी हैव इज 5 के बाद 6 7 9 8, नहीं है, 6 के बाद क्या होता है 7 है, so what we will do, we'll write 7 and we'll cut. 7 के बाद 8, हमारे पास 9 है 8 है, तो हम क्या करेंगे, we'll write 8 and cut, और लास्ट में हमें क्या लिखना है 9, और 9 लिख के we will cut it. Understood? 1 2 3 5 7 8 9, समझ में आया how you are going to do that? Okay, hurry up, write down these numbers and tell me इनको ascending order में कैसे करना है। Hurry up all of you, फटाफट से एक बार ये लास्ट वाली लाइन रीड करिए and tell me how you are going to do this. Yes class, see 1 के बाद 2, so we will write 2 के बाद 3 नहीं है हमारे पास, then we have 4, we'll cross, 4 के बाद we have 5, तो हमने 5 लिखा और क्रॉस किया, उसके बाद 6 नहीं दिया हुआ, we have 7, तो 7 को कॉपी करेंगे, क्रॉस करेंगे, then we have 8, we will write 8 and we will cross it, और लास्ट में 9 लिखा और इसको क्रॉस करा, तो देखिए ऊपर के सब नंबर्स क्रॉस हो गए and we have 1 2 4 5 7 8 9. Understood that? So बेटा when we are writing the given numbers, जो भी हमें नंबर्स दिए, जब उन्हें हम smallest to biggest लिखते हैं, that is called ascending order. Clear? Okay, let's do some work in notebook. So open your notebook everyone. Do this work in notebook. I'll tell you and then you have to do. Okay class? So open your notebook first.
now let's see how we are going to do our today's work in notebook. So as I have told you, you have to do the work in your notebook, in maths notebook. So open your maths notebook and over there you can make a page like this where you can see that I have written some group of numbers here, but again they are not in proper series, they are not in order. So we are going to write them in correct ascending order. Yes, I told you what is it, ascending order, from smallest to biggest. So first what we are going to do is write today's date. So that is 11 December 2020 and mention classwork here. Done. This is your classwork. Now ascending order is smallest to biggest. You will write like this. ठीक है कि ascending order क्या होता है, from smallest to biggest. Now you can write these numbers. Can you see them here? I have written some group of numbers. So आप चाहें तो you can copy down from this only. If you want you can take another numbers. But आज हमें क्या करना है, as we have learned the concept, so take only one single digit number and write them one in a box. एक नंबर को हम एक ही बॉक्स में लिखेंगे और सिर्फ 0 से 9 तक के ही नंबर्स को लेना है. क्लियर? नाउ लेट्स start solving them. So as I told you, tell me which is the smallest number here. 0. So we'll write 0 here and we'll cut it down. Next we have is 1. नहीं है. Then 2. Again not there. Then we have 3. So let's write 3 here and we'll cross. 4. Yes we have. So we'll write 4 and we'll cross it like this. Then can we see have 5? Yes we have 5. Put a cross here. 6 है? No. 7? Yes we have. So we will write 7 and we'll cross it. Then 8 भी नहीं है, 9 है. So we will write 9 and put a cross. Understood? Like this you are going to do your work today. Next we have 5, 8, 4, 7, 3, 1. तो अब बताइए इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1. So we'll write 1 and we'll cut. 2 है? No. 3? Yes we have. 3 लिखा और इसको कट किया. Then do we have 4? Yes. We will write 4 and we will cut. 5? Yes we have. 6 है? नहीं. 7 is given. So we will write 7 and after 7 we have 8. तो 8 लिखना है और इसको कट करना है. Understood how you are going to do? Now class, I have done 2 for you. I have shown you examples on board. So you are going to do these 3 yourself and your today's homework will be same as classwork. So you have to practice your ascending order once again as your today's homework on the next page. Is that clear to everyone how you are going to do your work today? So class, you have understood how we are going to do this work and what is this? The topic that we have learned today, we have understood today is ascending order. Say with me once, ascending order. And what is ascending order? When we are writing numbers from smallest to biggest. सबसे छोटा पहले लिखते हैं, वहां से हम शुरू करते हैं, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और जो लास्ट में लिखते हैं वो कौन सा होता है? सबसे बड़ा. That means from smallest to biggest. Clear? So this is your, what it is called? It is called ascending order. Now, as I have shown you, notebook में मैम ने आपको 2 sums करके दिखाए हैं. So rest you have to do as your class work today and you have to practice same work as your homework today. Is that clear to everyone? It's time for you to finish your work and get ready for the next class. Bye. Take care.